and today we are getting connected with Muhammad Nadeem, the dynamic personality from the Bidar, who just succeeded in UPSC examination. And let's some questions with him, how he got the success and what his dream in the future. First of all, through the medium of your channel, I'd like to thank Almighty and my parents, and I feel because of them I'm here. And first of all, also I'd like to tell that I am Muhammad Nadeem, and I'm a native of Bidar district. Presently, I am in Indian Revenue Service as Assistant Commissioner Income Tax. I'm an under-trainee officer. And in this year itself, as per the Civil Services Examination 2019, I have secured an All India rank of 461, and I will be allotted Indian Police Service, which is IPS. I would like to tell you that my home is just located opposite to a police station. So ever since my childhood, I have always been seeing the policemen around and the police station. So this has motivated me and instilled a desire in me that I have to become an Indian Police Service officer or an IPS officer someday. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya Air Force Station, Bidar, and for my PUC or intermediate, I went to Sri Chaitanya Junior College, Hyderabad. Thereafter, for my graduation, I enrolled in civil engineering program in MS Ramaiah Institute of Technology, Bangalore. After my engineering, the desire was always there to join Indian Police Service, and since last 2 years I was in Delhi. I took my coaching in Vajiram and Ravi Institute, and then for my self-study, I joined Hamdard Study Circle, and here I have cleared the examination with an All India rank of 461. सर, कितने साल की उम्र में आपने ये सपना सजाया? देखिए, ये सपना जो था, जब से मैंने होश संभाला है, ये सपना मेरे जहन में बहुत पहले से ही था, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन को देखता था, और जब मैं स्कूल में था, मैं एनसीसी, जिसको नेशनल कैडेट कोर भी कहते हैं, एनसीसी का हिस्सा था. उसके बाद भारत स्काउट्स का भी मैं हिस्सा था अपने स्कूल के दरमियान. तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म की ख्वाहिश मेरे दिल में हमेशा से रही, और इसी जज्बे को लेकर मैंने अपनी जो तैयारी है शुरू कर दी इस एग्ज़ाम की, और आज मैं इस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर कर लिया. Sir, who has played the well role from your family in your career and for your success? I think from my family has been very much important to this success. I think my parents, मेरे father और मेरे mom, दोनों का equally role रहा है इसमें, because मैंने अपने father से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा inspiration उनसे सीखा है. As I realized कि हम लोग जब हम अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने पेरेंट्स से करते हैं कि फादर मुझे IPS अफसर बनना है, फादर मुझे क्रिकेटर बनना है, फादर मुझे साइंटिस्ट बनना है, यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर हम पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं रहेंगे तो हम अपने करियर की जो ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपना इंटरेस्ट को ज़्यादा उतना प्रेफरेंस ना देते हुए जो लड़के का, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस से तो ज़्यादा इसमें बेहतर है. क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि सोसाइटी में पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी. ये हम अपने स्टूडेंट्स, अपने चिल्ड्रन से बिना पूछे ये डिसीजन फैसला ले लेते हैं. तो अब देखिए, कहीं ना कहीं एक घर में ये ख्वाहिश थी कि मैं IIT क्रैक करूं, IIT का हिस्सा बनूं. मैंने IIT की एग्ज़ाम दी, उसका ट्रेनिंग दिया, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ फेल हो गया. लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि यूनिफॉर्म पहनने का था, मेरा इंटरेस्ट IPS ऑफिसर बनने का था, तो मैं इसमें कामयाब हो गया. How many attempts did you conduct for cracking this course? This was my third attempt that I have cleared in this examination. In my first attempt, I cleared the preliminary examination, but I could not clear the mains exam. But after failing in the first attempt, I did not leave the preparation. And in my second attempt, I cleared the examination and I got 656 rank all India wise. But I was very happy with my result, but I was not satisfied because I missed IPS by just 2 marks. So I took the service, and Government of India gives the opportunity to write and appear for the exam again. So in the Civil Service Examination 2019, I appeared again,
and I have secured all India rank of 461, and this was my third attempt. Our viewers want the good message from you, how to study for this examination and what they should do, and clearly please motivate to them. I think the message to the youth in general and the youth of Bidar in specific would be that now the time has come that we move beyond engineering and medicine. There is a need to diversify the career options. For example, I wanted to join the police. So here I am. I have diversified my career option. I did not restrict myself to civil engineering, despite that being my background. In addition to this, I would like to say that always dream big and start small. अपने ख्वाहिश अपने सपनों को कभी छोटा ना करें। ये मत सोचे कि मुझे अब जैसे पुलिस में था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एक लोअर ग्रेड से स्टार्ट करना है। मैंने सीधा ऊपर ऑफिसर के पोस्ट पे जाने की ख्वाहिश रखी। तो अपने सपनों को कभी छोटा नहीं बनाएं, अपने आप पर सेल्फ बिलीव जरूर रखें। देखिए कंपटीशन हर जगह है, बट अगर आपकी ख्वाहिश है और आपका अंदर वो पैशन और डेडिकेशन है तो आप जरूरी चीज हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत ये है कि ड्रीम्स एंड डेडिकेशन मेक्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये यहाँ पे मेरा ड्रीम जो था एक यूनिफॉर्म पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर बनने का था, जो है आईपीएस ऑफिसर, और डेडिकेशन जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि मैंने 3 साल, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो ये इससे जाहिर होता है कि मेरे पास सपना भी था, ड्रीम भी था और डेडिकेशन भी था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ये सक्सेस मिली। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही भी है कि सपने को सजाए रखना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं और दुनिया के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि अगर लाइफ में कुछ बनना है तो अपने सपने को सजाए रखें जब तक ये कंप्लीट ना हो। तो सर जी, आपके इस सक्सेस में शायद कुछ कठिनाई भी आई हो और डिफिकल्टीज भी अराइज हुई हो, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस कठिनाई के समय में कैसे काम लें और किन हालत कैसे आसानी से आसान ये एग्जाम को पास करें और इस एग्जाम की स्टडी किन आसानियों से कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई या डिफिकल्टी ये रहेगी कि मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं था बीदर से, और मुझे इस एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक ना एक दिन पुलिस ऑफिसर बनना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफिकल्टी ये थी कि कौन सी किताबें पढ़ें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, आंसर कैसे लिखें, इस एग्जामिनेशन को कैसे समझें। तो ये समझने में ही मुझे काफ़ी वक्त लग गए। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्ज़ाम हो या डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, एग्जामिनेशन को रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये एग्जामिनेशन लिखना है, आईएएस और आईपीएस का एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कम से कम 1 महीना अपना लगाएं और इस एग्जाम के ताल्लुक से रिसर्च करें। पढ़ाई नहीं, इस एग्जाम के ताल्लुक से रिसर्च करें कि क्या करना है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी किताबें पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, अभी कहाँ से मिलेगा। मेरे वक्त तो ये सभी इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज आप अपने शहर में रहकर ही, यानी कि बीदर में रहकर ही, एक डिस्ट्रैक्शन प्रूफ जगह पे बैठकर, एक सीरियस एनवायरनमेंट में रहकर, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, एक मोबाइल या एक लैपटॉप की जरूरत होगी। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस किसी भी की ख्वाहिश ये है, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अपने फाइनल ईयर में हैं, एक बार यूट्यूब में जाएं। हम इंटरनेट पे इतना अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें। यूट्यूब में जाएं, पूरा इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से रिसर्च करें। जो एग्ज़ाम, जैसे मैं एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हूँ, पिछले साल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनकी आप वीडियोस देखिए, उनकी वीडियोस अवेलेबल है कि क्या उन्होंने किया, पहले अटेम्प्ट में उनसे क्या गलतियाँ हो गई थी, दूसरे अटेम्प्ट में उनकी क्या गलतियाँ हो गई थी, फिर उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया। अगर आप सबकी गलतियाँ पहले से जान लें कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, पहले से ही अगर आप जान लें, तो ऐसा हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कौन सी गलती मुझे अवॉइड करना है, कौन सा रास्ता मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें और टॉपर्स से सीखिए। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। जितने भी लोग अभी हिंदुस्तान में आईपीएस बन चुके हैं रिसेंटली, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या जिम्मेदारियां रहेंगी उनकी और किस तरह से काम करना चाहिए? क्या जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी इसमें बेहतर रहेगी? देखिए, मेरा मैसेज तो मैं तो अभी सर्विस ज्वाइन ही कर रहा हूँ,
तो मेरा बस ख्वाहिश यही रहेगी कि जो परसेप्शन है हमारे यहाँ पे पुलिस का ऐसा परसेप्शन है कि एक नेगेटिव तरह का परसेप्शन है कि पुलिस इनसेंसिटिव है, पुलिस जल्दी एक्ट नहीं करती और बहुत ज़्यादा गैप होता है एक पुलिस और पब्लिक में। तो इस गैप को, इस परसेप्शन को ख़त्म करने की मेरी ख्वाहिश रहेगी। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉडल अडॉप्ट करूं, जिसमें कि पब्लिक को पुलिस में फुल कॉन्फिडेंस रहे, पब्लिक पुलिस की मदद करे सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं इसको कम करने के लिए। और यही और मेरी एक और भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि जब मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं और जो भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊं वहाँ की यूथ को मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो एक बेहतर अपनी ज़िंदगी बना सकें और सोसाइटी की मदद कर सकें और इस देश को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं। Okay, finally my last question is there, sir, and what did you overcome about after facing the examination? The thing is, after facing the examination, there were so many difficulties that will be there in your path. But the main thing is, you have to focus on your dream and what we need is a dedication and consistency in your approach. The students must ensure that once they start preparing this examination, they should not give up. They should not give up, and they have to, in a way, kind of completely submerge themselves into this preparation phase. अगर आप सिर्फ ऊपर से ही ट्राई करने के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप को पूरी तरह इसमें डुबा देना पड़ेगा इस जर्नी में, और बहुत ही हर दिन मुसलसल 1 साल तक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन मेरी बात मानिए कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2014 में और ये साल है 2020, तो मुझे हालांकि मैंने एग्जाम दूसरी बार क्लियर किया है, लेकिन इस फेज तक पहुंचने के लिए मुझे मुसलसल 6 साल लग गए। बट अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ये जो जर्नी थी जो मैंने की 2014 से लेकर 2020 तक, ये वर्थ थी, ये बहुत फ्रूटफुल थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे आखिरी में सफलता मिल गई, यानी जो मैं चाह रहा था मैं अपनी लाइफ में वो मुझे मिल गई। अगर इन 6 साल के दरमियान मैं किसी भी एक साल में मैं अपनी हिम्मत हार जाता और अपना जो ड्रीम है, जो सपना है, मैं भूल जाता, तो शायद आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता मेरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल 7 News 24 से आप जुड़े रहे और काफ़ी जानकारियाँ दी IPS एग्ज़ाम के लिए हमारी यंग को, यूथ को, जनरेशन को। चलिए अभी हम जानते हैं, इनके पापा हमारे साथ हैं, इनके फादर मौजूद हैं, कि क्या खुशी वो महसूस कर रहे हैं अपने सन की कामयाबी पर, अपने औलाद की कामयाबी पर। इनके जो पापा हैं उनकी किस तरह से खुशी है, चलिए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। Viewers 724, I'm conveying my regards to you all. यकीनन एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशी है। मैं ये खुशी मेरे बीदर निवासियों को डेडिकेट करता हूँ। इसमें मेरे बीदर निवासियों का बड़ा रोल रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया, केंद्र विद्यालय के टीचरों ने इन्हें काफ़ी एनकरेजमेंट दिया इनकी प्राइमरी लाइफ को संवारने में। फिर इनके कॉलेज के लेक्चरर्स ने भी दिया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ जहाँ ये गए इनको एनकरेजमेंट मिला। तो इस खुशी में मैं सबको शेयर करता हूँ और इसको मैं बीदर निवासियों को डेडिकेट करता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से और यूपीएससी कैंडिडेट निकलते जाएंगे। जैसे कि पिछले सालों की एक बड़ी मिसाल है, पिछले 3 सालों से मुसलसिल कैंडिडेट यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला कंटिन्यू होता रहे। बस यही मैं आज के मौके पे नदीमुद्दीन की खुशी इस तरह से शेयर करना चाहता हूँ।